Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह. हालेलुया. प्रभु आपकी स्तुति हो. प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा हो. Hallelujah. Lord Jesus, we bless your holy name. Lord Jesus, we glorify you. Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हो. Lord, we bless you. We praise you, King of glory. We magnify your holy name, Lord Jesus. We magnify your holy name, magnify your holy name. Lord, we magnify your holy name, magnify your holy name. Hallelujah. Lord, we lift up your name. Lord, we praise you. Lord, we praise you, praise you, praise you, praise you, bless you. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु मसीह. Hallelujah. प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. प्रभु आपकी महिमा हो. यीशु मसीह आपकी प्रशंसा हो. प्रभु यीशु मसीह. हालेलुया. आपकी प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो. यीशु मसीह आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. प्रभु हम सुबह की भेंट लेके आपके चरणों में आते हैं. प्रभु यीशु मसीह. प्रभु हम मिलके सब तेरे नाम को ऊंचा करते हैं. हालेलुया. सब प्रभु का धन्यवाद करें. हालेलुया. अपना मुंह खोलें, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें. Lord Jesus, we glorify you. You are so awesome, Lord. You are so wonderful. Lord, you are so lovely. Lord, you are so beautiful. Lord, you are worthy of all the praises. You deserve all praise and honor. We ascribe our worship unto you. Hallelujah. King of glory, majestic Lord, we lift you up. Hallelujah. For your name is name above every name. For your name is exalted above all other names, Lord. Hallelujah. We praise you. Lord, we glorify you. We glorify you. For you conquered Satan. You conquered every diabolic force of hell. And Lord, you crushed hell. You overcame Hades. And Lord Jesus, you gave death to death. You gave death to death, Lord Jesus. तूने मौत को मौत दी है यीशु मसीह. And death has lost its power. Grave has no strength now. Hallelujah. Sin, the sting has already been taken out and destroyed. Lord, we thank you that in your name death can harm us nothing. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for redeeming us with your precious blood. Thank you that you didn't redeem us with silver and gold, the corruptible things, but you redeemed us with your precious blood. Hallelujah. We are the purchase of your blood. हम तेरे खून की खरीद हैं यीशु मसीह. हम तेरे लहू की खरीद हैं. प्रभु तेरे लोग कभी ना भूलें कि तेरे लोग तेरे लहू की खरीद हैं. तेरे लोगों को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आपको अपना पवित्र लहू बहाना पड़ा है. प्रभु हमारी कीमत तेरा खून है, तेरा पवित्र खून. यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं. किसी भी चीज़ की कीमत उतनी ही होती है जितने की वो ख़रीदी गई होती है. तो प्रभु हमारी कीमत तो तेरा खून है. तूने अपना लहू दे के हमें छुड़ाया है. हालेलुया. यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो. प्रभु तू कोई धर्म बनाने, नया पंथ चलाने, धर्मांतरण करने नहीं आया. तू प्रभु अपने लहू की आहुति देने आया है. अपनी जलाली देह का एक महायज्ञ करने आया है और अपने पवित्र लहू की आहुति देने के लिए आया. यीशु मसीह हम तेरे लहू की कुदरत को खोलते हैं. सुबह मैं तेरे खून की कुदरत को खोलता हूँ इन सभी तेरे लोगों पे जो प्रभु इस समय तेरे दास की आवाज़ को सुन रहे हैं. इन सब पे तेरे खून को खोलता हूँ. ललित मेहरा पे तेरे लहू को, इसके घराने पे तेरे लहू को खोलता हूँ. सुनीता गुड़िया कंसावर को तेरे खून के साथ बांधता हूँ. साबी सुरजीत इसके ख़ानदान को, भाई संबंधियों को तेरे खून के साथ बांधता हूँ. रवि प्रकाश गुप्ता को
इसके घराने को तेरे खून के साथ बांध देता हूँ इसी समय में। प्रभु अमरीश कुमार के ऊपर मैं तेरे लहू को इन्वोक करता हूँ। यीशु मसीह, आई इन्वोक योर ब्लड जीसस। हरपाल सिंह बाजवा पे तेरे लहू को इन्वोक करता हूँ। लॉर्ड, आई इन्वोक द ब्लड ओवर करमजीत कौर। लॉर्ड, आई इन्वोक द ब्लड ओवर ब्रदर इमैनुअल सहोता एंड हिज हाउसहोल्ड। आई इन्वोक द blood of Yahushua HaMashiach, and I bind Daisy VS with the blood. I bind Avtar Burjman and his family, his household, in the blood of Jesus. I bind Brother Jatin Kumar, who is a doctor by profession, his entire family, and everything that he does. I bind everything in the blood of redemption, the blood of Yahushua HaMashiach. Lord, I bind your daughter Nar's light of Jesus in the blood of the Lamb. Lord Jesus, I sprinkle your blood all around her. And Lord, I lift up Devinder Kular before your throne of grace this morning. Lord, I present her and her husband and her family before the Ark of the Covenant. And Lord, I release healing and anointing over her family in England. Lord, bless her, I pray. I release the anointing of the blood over Pastor Rajinder Kumar John, over his son, over his daughter, over his wife, over the ministry that he does, Father. Hallelujah. And Lord, I bind Prabdeep and his household in the precious blood of the Lamb. In the blood, I invoke the blood over Durgesh Kumar and his family. I invoke the blood. तेरा खून हमारी प्रोटेक्शन है खुदावन. I invoke your blood over Durgesh Kumar, over your daughter Agnes Lal and her husband and her family. I invoke the blood over Bishop साहब. आप फिर से बिशप हो गए, चलो बढ़िया है. Bishop Sandeep. Lord, over Brother Darshan Singh, I release the blood over his household, over his family. Lord, I invoke the blood of Yahushua HaMashiach. I invoke the blood over Sister Diana Christie and her family in Canada. I invoke the blood. I invoke the blood over Tanuja Seth, Lord Jesus. I invoke the blood. I invoke the blood of Yahusha. I invoke the blood over Narinder Singh, Lord. Over his spine, I invoke the blood. Lord, over Jaspal Singh, I invoke the blood. Lord Jesus, I invoke the precious blood over your people. Hallelujah. Only under your blood is a security. Only under your blood is a protection. प्रभु, हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि तूने हमें अपने बेटे बेटियां बनाया है. प्रभु, इससे बड़ा टाइटल कोई नहीं है. कोई बड़ा टाइटल नहीं है. बिशप हो, आर्च बिशप हो, अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, सबसे बड़ा टाइटल तूने हमें जो दिया है वो तेरे पुत्र और पुत्रियों का है. प्रभु, प्रभु, ये संसार दुनिया में अपनी शोभा चाहता है, दुनिया में अपनी महिमा ढूंढता है ये जगत, पर प्रभु हमारी शोभा तेरे पुत्र और तेरी पुत्रियां बनने में है. प्रभु, ये सादगी की सच्ची बातें अपने लोगों को सिखाइए. सरल, सच्चा, सादगी भरा जीवन ये सिखाइए प्रभु जी. हालेलुया. स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद. आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को पूरे जगत के सामने ये कह के इंट्रोड्यूस किया, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ. हालेलुया. That was the introduction you gave to Jesus. Above all, Jesus needs no accolade. He needs no accolades. Beyond all the accolades, the highest honor that you bestowed upon Jesus was, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Lord Jesus, deliver us from the desire of entitlement. Deliver us, Lord, from lifting up and elevating ourselves before people. Deliver us from this desire of being like others, what others are doing. खुदावंद, तू हमें सादगी की ओर ही ले चल खुदावंद, और अपने चरणों में रखना प्रभु. हालेलुया. तेरा धन्यवाद हो.
तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं आज की सुबह, प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। लॉर्ड आई प्रे फॉर Mr. Salim Gabriel from Canada. May you bless him. I bind him in the blood of Yahushua HaMashiach. Lord, I invoke your blood over this man. I invoke your blood over Sunita Kaur from Britain. I invoke your blood over her daughters and her families. Particularly, I invoke the blood of Yahushua HaMashiach over Raj. I invoke the blood of Yahushua HaMashiach. I invoke the blood, Lord. May you draw the hedge of the blood around her. Lord Jesus, may you draw the hedge of the blood around her. Lord, this is very evil time upon the earth. Very, very evil time upon the earth, Lord Jesus. Lord, demonic forces are plaguing and wreaking havoc on this planet that God so deeply cherishes. And there are so many catastrophe and there are so many evil things that are queuing up to unleash their terror upon the earth. Man doesn't even know what's coming upon the earth. So Lord, I pray in the name of Jesus, open the eyes, आंखें खोल तेरे लोगों की, तेरे लोग पहचाने पृथ्वी पे क्या हो रहा है। हालेलुया। खुदावंद, मैं मिस्टर कक्कड़ के लिए, कक्कड़ एंड फैमिली के लिए दिल्ली से प्रार्थना करता हूँ। Lord, I pray you give that man life, you deliver him, and Lord, also open his eyes, his heart, his wife's heart, Lord, and their whole family, that they may know how deeply you love them, Jesus of Nazareth, that you care for them, that you died for them, that you shed your blood for them. Lord, I release your angels around Mr. Kakkad in the mighty name of Jesus. Hallelujah. तेरे लहू की जय हो। तेरे पवित्र लहू की जय हो, 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 तेरे पवित्र लहू की जय। खुदावन तेरे नाम की महिमा हो, खुदावन तेरे नाम की महिमा हो। लॉर्ड, आई स्पीक द ब्लड ओवर ब्रदर जसवंत सिंह। आई स्पीक योर ब्लड, आई अनलीश द ब्लड अनॉइंटिंग। तेरे खून के मसा को, खून की हजूरी को मैं खोलता हूँ। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, अपना अभिषेक पोर आउट कर, इंटरसेशन का, हलीमी का, दीनता का, पवित्र जीवन जीने का, और प्रभु हर तरह का दिखावा, बनावटीपन दूर हटा। खुदावन दूर हटा। ये बनावटीपन, ये दिखावा, ये शोखियाँ, ये शैतान की ओर से हैं। ये शोशेबाजियाँ शैतान की ओर से हैं, जो बहुत सारे लोगों को नरक लेके जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह, तू कहता मुझसे सीखो, मैं मन का दीन हूँ। प्रभु तेरे जुए में जुतने दे तेरे लोगों को। घमंड, दिखावा, बनावटीपन से बचा खुदावन। तेरे जुए में जुतने वाले लोग खड़े कर। एक तरफ तू जुता है जुए में, दूसरी तरफ हम जुत जाएं। खुदावन पर्सनल जुआ है एक एक के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु तेरे वचन पे जब हम कुछ पल मनन करते हैं तो हमारी आंखें खोलना खुदावन। सच्चाई को जान के जो पीछे मुड़ता है उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। प्रभु हम पे अनुग्रह कर, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं आज सुबह एक छोटा सा सीड परमेश्वर के कलाम का आपके जीवन में बोना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। मेरे संग निकालिए जकरिया नबी की पुस्तक जल्दी से, बुक ऑफ जकराया। छोटा छोटा संदेश और हम प्रार्थना करते रहेंगे। आज फिर 3 o'clock हम प्रार्थना करेंगे, 3 बजे, और फिर उसके बाद हम 6 o'clock प्रार्थना करेंगे। मैं 12 भी करता हूँ, अगर आप 12 चाहोगे तो 12 भी आप करो प्रार्थना, 9, 12, 3 and 6। तो मैं आपको वचन देना चाहता हूँ, मेरे संग निकालिए जल्दी से बुक ऑफ जकराया, जकरिया नबी की पुस्तक, उसका
12 अध्याय, ध्यान से सुनिए। जकरिया 12, जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 12 अध्याय। देखिए प्रभु क्या कहते हैं। प्रभु कहते हैं 12 के 10 में, एंड आई विल पोर अपॉन द हाउस ऑफ डेविड एंड अपॉन द इनहैबिटेंट्स ऑफ जेरूशलम द स्पिरिट ऑफ ग्रेस एंड सप्लीकेशन। हालेलुया। प्रभु यहोवा कहता है कि मैं दाऊद के घर पे और यरूशलेम के वासियों के ऊपर अनुग्रह का और प्रार्थना करने का आत्मा उंडेलूंगा। आपको मालूम भाइयों और बहनों, पृथ्वी के ऊपर इस समय सच्ची प्रार्थना करने का, इंटरसीड करने का आत्मा नहीं है। दिखावे का, बनावटीपन का, झूठी भविष्यवाणियों का, एंटाइटलमेंट का, ये सारे बातें हैं, लेकिन ये ग्रेस स्वर्ग से आती है। ये अनुग्रह जो आपको हलीम बनाता है। आप अपने नाम के आगे कुछ नहीं लगाते, आप साधारण सिंपल बन के यीशु मसीह के चरणों के संग चिपकना, लिपटना चाहते हो। ये अनुग्रह स्वर्ग से आता है। स्पिरिट ऑफ ग्रेस एंड सप्लीकेशन, ये अनुग्रह है प्रभु का कि आप सच्ची प्रार्थना कर सकते हो और आपको बनावटी जीवन से नफरत हो जाती है। लोगों के सामने अपने आप को बड़ा बना के पेश करना, इससे घृणा होती है आपको, अंदर से घृणा होती है आपको, क्योंकि आपको पता लग जाता है आप कुछ भी नहीं हो। जब तक आपको पता नहीं ना लगता कि आप खाक हो, आप कुछ भी नहीं हो, तब तक आप अपने आप को बड़ा बनाते रहोगे। बनाते जाइए, आपकी चॉइस है। प्रभु कहता है मैं स्पिरिट ऑफ ग्रेस और सप्लीकेशन का रूह उंडेलूंगा। ये प्रभु की ओर से आते हैं अनुग्रह भाई और बहनों। अगर प्रभु अनुग्रह या आपके ऊपर उंडेले, उसे खोना मत। प्रभु के चरणों से लिपटे रहना, सादगी में, दिखावे में नहीं, सादगी में। सादगी में मसीह रहता है। बनावटीपन में, दिखावे में, शोखियों में, भड़कीलेपन में, अपनी मशहूरी में, पब्लिसिटी में यीशु मसीह नहीं है। मसीह यीशु सादगी में, खालीपन में, ब्रोकननेस के अंदर वास करता है। सुन लीजिए कलाम, ये कलाम परमेश्वर का मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रभु कहता है परमेश्वर पोर आउट करेगा ऐसा अभिषेक, एंड दे शैल लुक अपॉन होम दे हैव पियर्स। तब वो उसे देखेंगे। किसे? जिसको उन्होंने जख्म दिए हैं। वरना आप अपने आप को ही देखते जाओगे, अपने नाम को ही देखोगे, अपने जलाल को ही देखोगे, अपनी मिनिस्ट्री को, अपने आप को यूं आप ऊंचा करते जाओगे। जब अनुग्रह आएगा ना, प्रभु का कृपा आएगी, सच्चा आत्मा उतरेगा, तब आप उसे देखोगे जिसको दे विल सी हिम whom they pierced, they shall mourn for him as the one only son, and shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn। प्रभु अपना रूह उंडेलेगा बनी इस्राएल के ऊपर। हालेलुया। और जब अपना रूह उंडेलेगा, दीनता का आत्मा उंडेलेगा, ग्रेस, स्पिरिट ऑफ ग्रेस उंडेलेगा, और सप्लीकेशन और सच्ची प्रार्थना करने का रूह उंडेलेगा, तब वो यीशु मसीह को देखेंगे। वो आएगा इस्राएल के घराने के लिए, तब वो उसे देखेंगे जिसको उन्होंने पियर्स किया है, छेदा है, जिसको छेदा है उन्होंने कीलों से और भाले से और कांटों के ताज से। फिर स्यापा करेंगे उसके लिए, और इतना जबरदस्त स्यापा करेंगे कि जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। और 11 वचन पढ़ें, देयर शैल बी ग्रेट मॉर्निंग इन जेरूशलम। भाई और बहनों, धन्य है वे जो मौन करते हैं। मॉर्निंग चाहिए इस समय। इस समय शोखियां नहीं चाहिए, इस समय शादमानियां नहीं चाहिए, इस समय मॉर्निंग का रूह चाहिए। एंड दे शैल मॉर्न। हालेलुया। और इसी 13 का 6 वचन भी पढ़ लीजिए, 13 का 6, जकरिया 13 का 6। एंड वन शैल से अनटू हिम, व्हाट आर दीज वुंड्स इन दाइन हैंड्स।
तब वो अपने आप को इज़राइल के घराने पे प्रकट करेगा, दाऊद के घर पे प्रकट करेगा, और वो उसके शरीर को देखेंगे, उसके हाथों को देखेंगे और कहेंगे ये ज़ख़म कैसे हैं। देन ही शैल आंसर दोज विद विच आई वॉज वुंडेड इन द हाउस ऑफ माई फ्रेंड्स। ये वो घाव हैं जो मुझे मेरे दोस्तों ने दिए हैं, मेरे दोस्तों के घराने ने दिए हैं। यीशु मसीह अपने आप को प्रेजेंट करेगा बनी इसराइल पे। यीशु मसीह की बॉडी में घाव हैं, सुनिए ध्यान से। यीशु मसीह की बॉडी में स्कार्स हैं, स्टिग्माटा ग्रीक वर्ड है, स्टिग्माटा। ये घाव यीशु मसीह को हमारी बदकारी ने दिए हैं। जब तक आप यीशु मसीह पे आंख रखोगे ना, यीशु मसीह के घाव पे आंख रखोगे, तब तक आपको अपने पाप याद आते रहेंगे। जब तक आपको अपने पाप, अपनी बदकारी और अपनी गंदगी याद आती रहेगी जिसमें आप लिबड़े हुए थे। और प्रभु कहता है कि तेरी वो एम्बिलिकल कॉर्ड भी कटी हुई नहीं थी, तू खून में लथपथ थी, और अम्बिलिकल कॉर्ड संग में जुड़ी थी और खून में तू लथपथ थी। तब मैंने तुझसे कहा लिव, तब मैंने तुझसे कहा जीवित रह। तब तक हम क्या करेंगे? तब तक हम प्रेरित पौलुस की तरह होंगे। प्रेरित पौलुस कहता है ये बात सच्ची है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को बचाने के लिए जगत में आया। और क्या कहता है प्रेरित पौलुस? प्रेरित पौलुस कहता है जिनमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूं। अब देखिए, आपको जो पॉजिटिव कन्फेशन वाले, जो एक्सट्रीम फेथ कन्फेशन वाले हैं, वो बोलेंगे नो नो नो, यू डोंट हैव टू से यू आर अ सिनर नाउ, यू हैव टू से यू आर द राइचियसनेस ऑफ गॉड, यू आर द होलीनेस ऑफ गॉड, यू आर द बिलवेड ऑफ गॉड, यू आर एक्सेप्टेड इन क्राइस्ट, यू कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट, यू आर गॉड्स क्राउनिंग मास्टरपीस, स्पीक पॉजिटिव थिंग्स। अब देखिए, प्रेरित पौलुस ही है जिसको ये प्रकाश लेकर आया कि हमारे पाप क्षमा हुए, हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं, हम परमेश्वर की पवित्रता ही हैं, हम परमेश्वर की वाचा के लोग हैं। मसीह जो महिमा की आशा हमारे अंदर वास करता है, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। ये सब खूबसूरत परमेश्वर के कलाम के प्रकाश प्रेरित पौलुस के द्वारा ही आए हैं। वही प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है? वो कहता है ये बात हर प्रकार से मानने योग्य और सच्ची है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने जगत में आया, जिनमें से सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। प्रेरित पौलुस ये नहीं कह रहा जिनमें से सबसे बड़ा पापी मैं था। प्रेरित पौलुस को मालूम है कि मेरे पाप क्षमा हो गए, मुझे नया जीवन मिल गया, मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूँ, मैं परमेश्वर की पवित्रता ही बन गया, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मेरा नाम परमेश्वर की जीवन की किताब में लिखा हुआ है, मुझे उसने लेपालक पुत्र होने का आत्मा दिया, उसने बिचवई की दीवार को जो अलग करती थी ढा दिया है, अब मैं परमेश्वर की कॉमनवेल्थ का हिस्सा हूँ, अब मेरा नाम उसके जीवन की पुस्तक में लिखा गया, मुझे परमेश्वर ने सामर्थ दिया, मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया, मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पाया, मैं प्रभु यीशु मसीह की छवि के ऊपर ढलता जा रहा हूँ। ये सब अद्भुत बातें प्रेरित पौलुस जानता है, लेकिन फिर भी ये नहीं लिखा उसने कि जिनमें से सबसे बड़ा पापी मैं था। वो कहता सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। भेद क्या है? जब तक आप यीशु मसीह पे नज़र रखेंगे, आपको एहसास होगा आप कुछ भी नहीं हो। फिर आप दुनिया की एंटाइटलमेंट के पीछे नहीं भागोगे। बिशप, आर्च बिशप, ओवर आर्चिंग बिशप, मैं कई लोगों के टाइटल देख के हैरान होता हूँ। अपने नाम के आगे लिखते हैं हिज होलीनेस, मोस्ट राइट रेवरेंड हिज होलीनेस, बिशप, डॉक्टर, फलाना, इतना कुछ नाम के आगे लगाया होता है। ये किसके लिए है? ये इसलिए है क्योंकि आप अपना परिचय लोगों को इस तरह देना चाहते हो। आप लोगों को अपना परिचय, अपनी पहचान इस तरह देना चाहते हो क्योंकि आप अपने दिल में चाहते हो लोग आपको इस रुतबे से जाने। आप क्यों चाहते हो कि लोग आपको इस रुतबे से जाने? क्योंकि आपके हृदय के अंदर इच्छा है आपका सम्मान हो, आपका आदर हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो। तो प्रभु के वचन में क्या लिखा है? प्रभु के वचन में लिखा है कि जब वो उसके घाव को देखेंगे, यीशु मसीह की बॉडी में ये जो घाव है ना,
ये इटर्नल है, ये कभी मिटेंगे नहीं। हम अगर हमारे अंग कटे फटे होंगे, हम अगर डिसेबल्ड होंगे, किसी तरह से होंगे, जब हमें जलाली देह मिलेगी हम संपूर्ण हो जाएंगे, नूर की बॉडी मिलेगी हमें। लेकिन यीशु मसीह ने जब जलाली देह ली, यीशु मसीह की जलाली देह के अंदर भी ये स्कार है, ये निशान है, और हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। जब तक आप यीशु मसीह की ओर आंख लगाएंगे ना, सुन लो मेरी बात भाई और बहनों, आपको यीशु मसीह के हाथ पाँव में, पसली में भाले का निशान और ब्रूजेस मिलेंगे, उसके घाव जख्म मिलेंगे, वो आपको तोड़ते रहेंगे कि आप हलीम रहें। अगर आप जीवित हो उन घावों के कारण, अगर मैं जिंदा हूं उन जख्मों के कारण जिंदा हूं। हालेलुया। पढ़िए जल्दी से भजन 22, साम 22, जल्दी से पढ़िएगा। शरीर के अंदर इच्छा पड़ती है भाई और बहनों, टेम्पटेशन बहुत तगड़ी आती है कि लोग हमारी बड़ाइयाँ करें, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें बोलें हमारे बारे में। ये टेम्पटेशन तो आती है कि हमारी एंटाइटलमेंट हो, हमारा आदर हो, अरे हम हैं कुछ, ये टेम्पटेशन तो आती है। पढ़िए साम 22 वर्स नंबर 1, 22 भजन की पहली आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। माई गॉड, वाई हैज़ दाउ forsaken मी, वाई आर्ट दाउ फार फ्रॉम हेल्पिंग मी, एंड फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ माई रोरिंग। हालेलुया। राजा दाऊद ने यह भजन लिखा यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने से 1000 साल पहले। लेकिन पवित्र आत्मा कितने ज़बरदस्त ढंग से राजा दाऊद को लीड कर रहा है। पवित्र आत्मा वो ये भजन अपने लिए नहीं, मसीह के लिए लिख रहा है। आपको मालूम, राजा दाऊद ने बहुत से मसीहानिक साम्स लिखे हैं। बाइबल में 12 साम्स हैं, मसीहानिक साम्स, जो मसीह को दिखाते हैं, मसीह के दुखों को। मसीहानिक साम्स का मतलब मसीह की पीड़ाओं को, मसीह के दुखों को, मसीह की सफरिंग को दिखाते हैं। यीशु मसीह क्रूस से ये शब्द बोलता है, माई गॉड। यीशु मसीह ने कभी परमेश्वर को गॉड नहीं कहा, यीशु मसीह परमेश्वर को पिता कहता था। लेकिन क्रूस पे क्या कहता है? माई गॉड, वाई हैज़ दाउ forsaken मी, वाई आर्ट दाउ फार फ्रॉम हेल्पिंग मी, एंड फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ माई रोरिंग। मेरे चिल्लाने के, रोर करने की आवाज़ की ओर तू क्यों कान नहीं लगाता परमेश्वर? हालेलुया। तूने मुझे क्यों त्यागा है? हालेलुया। और पढ़ें इसका 14 वचन जल्दी से। इसका पहले 8 पढ़ लें, पहले 8 पढ़ें। ये यीशु मसीह बोलता है 22 का पहला क्रूस से। अब 8 पढ़िए। He trusted on the Lord that he would deliver him. Let him deliver him, seeing he delighted in him. वो उस पर भरोसा रखता था। इसने यहोवा पे भरोसा रखा कि यहोवा इसे छुटकारा देगा। आप यहोवा इसे छुड़ाए, क्योंकि ये तो यहोवा पे तवक्कल करता था। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात यीशु जब क्रूस पे लटका है, नीचे खड़े हुए फरीसी सदूकी मजहब के ठेकेदार ये बात कह रहे हैं। हालेलुया। और पढ़िए वचन 14, इसका 14 वचन क्या कहता है प्रभु? 14 वचन में, आई एम पोर्ड आउट लाइक वाटर, ऑल माई बोन्स आर आउट ऑफ जॉइंट, माई हार्ट इज वैक्स, इट इज मेल्टेड इन द मिड्स ऑफ माई बाउल्स। ये प्रभु कह रहा है क्रूस से। 14 वचन, मैं जल की तरह उंडेल दिया गया। आपको मालूम, यीशु मसीह की सोल जो थी, जान जो थी, उसको लिबेशन ऑफरिंग करके यहोवा के आगे एक भेंट चढ़ाई जाती थी। महायाजक पानी, ऐसे एक सोने के कलश के अंदर पानी डाल के यहोवा की जगवेदी के ऊपर उंडेलता था। लिबेशन ऑफरिंग होती थी, अर्घ देना। यीशु मसीह ने अपनी जान को पवित्र जल की तरह यहोवा के आगे उंडेल दिया, पोर्ड लाइक वाटर। और पढ़िएगा इसका वर्स नंबर 16 वचन पढ़िए। ये भी प्रभु कहता है। प्रभु कहता कैसे है कि क्रूस पे जब प्रभु लटका है, 3 घंटे के लिए सूर्य नहीं है। आपको मालूम, जब प्रभु क्रूस पे लटका सूर्य अस्त हो गया था, और सूर्य अस्त होने के बाद फिर उदय हुआ। There was darkness all over the world for 3 hours. And this darkness was not due to solar eclipse.
solar eclipse could have never ever happened because the moon was full on that day. Sun went down as the Son of Righteousness was put on the cross. The sun went down and sun arose second time on the same day. मैंने आपको बताया है कि भविष्यवाणी थी ये, दूसरी बार एक ही दिन में सूर्य चढ़ेगा। और क्या कहता है यहाँ पे 16 वचन में, फॉर डॉग्स हैव कंपस मी, द असेंबली ऑफ द विकेड हैव एनक्लोज मी, दे पियर्स माई हैंड्स एंड माई फीट। कुत्तों ने मुझे घेरा डाला है। कुत्तों ने, आपको मालूम है कुत्ते कौन है? ये बदरुएं हैं, डीमंस हैं। एक जगह प्रभु कहता है बशान के सांडों ने मुझे घेर लिया। ये कौन है बशान के सांड? आपको मालूम बशान कौन सा एरिया है? बशान वो एरिया है जहाँ पे नफलीमों ने, उन फॉलन एंजल ने, वॉचर ने करप्ट किया था ह्यूमन डीएनए, जहाँ पे सीड मिंगल हुआ है, जहाँ पे दानव हैं, जहाँ पे वॉचर्स का सीड है, मिंगल्ड सीड है, करप्ट ह्यूमन डीएनए है, जहाँ पे गिबरीम है, नफलीम है। उन्होंने यीशु मसीह को घेरा डाला, शैतानी बदरुओं ने। 3 घंटे अंधेरा है। जब क्रूस पे लटके मसीहा को अंधकार की शक्तियों ने घेरा है और उन्होंने जश्न किया है। उन्होंने सोचा है जो ये अपने आप को जगत की ज्योति कहता था, हमने इसे अंधकार में कैद कर दिया। ये अपने आप को कहता था आई एम द लाइफ, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, हमने इसे मौत दे दी है। ये अपने आप को मार्ग कहता था, हमने इसके मार्ग बंद कर दिए हैं। हालेलुया। और दे वर ग्लोटिंग एंड दे वर हैविंग देयर लिटिल पार्टी इन द डार्कनेस। और क्या लिखा है यहाँ पे? डॉग्स हैव कंपस मी, द असेंबली ऑफ द विकेड, द असेंबली ऑफ द विकेड, द असेंबली ऑफ द विकेड। हिब्रू वर्ड स्टडी करें, यहाँ पे राशा वर्ड है। वो जो मैंने आपको बताया अलग अलग किस्म की बदरुएं हैं, उन्होंने यीशु मसीह को घेरा डाला। दे एनक्लोज मी, दे पियर्स माई हैंड्स माई फीट, आई मे टेल ऑल माई बोन्स, दे लुक एंड स्टेयर अपॉन मी। और क्या कहता है प्रभु 18 वचन में? दे पार्ट माई गारमेंट अमंग देम एंड कास्ट लॉट्स अपॉन माई वेस्चर। यीशु मसीह के चोगे के ऊपर जब यीशु मसीह क्रूज पे लटका है, रोमी सिपाही जुआ खेलते हैं, डाइस थ्रो करते हैं यीशु मसीह के गारमेंट के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने जो गारमेंट पहना है, हिस्ट्री बताती है कि बहुत कीमती था, सीमलेस था, उसके अंदर जॉइंट नहीं था। लेकिन आपको मालूम यीशु मसीह सबसे बड़ा नबी है जो इस पृथ्वी पे आया, सबसे बड़ा रब्बी है, उस्ताद है। उसका जो मेंटल है, हालेलुया। एलीशा अपने स्वामी एलिया की गुदड़ी के पीछे था, मेंटल के पीछे, और वो कहता था जो रूह तेरे ऊपर है उसका दुगना मसा मुझे चाहिए। यीशु मसीह का ये मेंटल है भाई और बहनों। और देखें दुख की बात, यीशु मसीह का ये मेंटल यीशु मसीह के चेलों के हाथ में नहीं आया, दुष्ट रोमी सिपाहियों के हाथ में आया जो इसे बेचना चाहते थे। और ये घटना चारों की चारों इंजीलों में लिखी हुई है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों लिखते हैं कि उसके कपड़ों के ऊपर वो गुनिया डालते हैं। अब देखिए एक व्यक्ति जो क्रूस पे लटका हुआ है कीलों के सहारे, सर पे कांटों का ताज है, पीठ कोड़ों की मार से ऐसी है जैसे ज़मीन पे किसान ने हल जोता हो। वो व्यक्ति इन भविष्यवाणियों को कैसे पूरा कर सकता है जो हजारों साल पहले उसके लिए लिखी गई हैं? 5 मेजर भविष्यवाणी हैं भजन संहिता 22 में जो अक्षर अक्षर पूरी हुई हैं। हालेलुया। अक्षर अक्षर पूरी हुई। आपको मालूम यूहन्ना 22 अध्याय के 25 वचन को आप पढ़िएगा, यूहन्ना 22 के 25 को। प्रभु यीशु मसीह के चेले एक कमरे में हैं और वहाँ पे एक चेला है जो दिदुमुस कहलाता है, थॉमस। वो उसे बताते हैं कि हमने जीवित प्रभु को देखा है। तो वो कहता है मैं तो तब तक विश्वास नहीं करूँगा जब तक उसके ज़ख्मों में अपना हाथ डाल के ना देखूं। तो प्रभु यीशु मसीह उसी समय प्रकट हो जाते हैं। आपको मालूम यीशु मसीह की देह जो है जलाली है। अब यीशु मसीह की देह लिमिटेशन में बंधी नहीं है।
यीशु मसीह की देह पारलौकिक है। आपको मालूम, परमेश्वर का वचन बताता है, प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, अलग अलग तरह के शरीर हैं। जलाली जो देह हैं उसकी भी फ्रीक्वेंसियां अलग अलग हैं। अलग अलग जो स्वर्गीय शरीर हैं उनका जलाल अलग अलग है, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, उनकी ग्लोरी डिफर करती है। हम सबको स्वर्ग में जब प्रभु के पास जाएंगे, हम यीशु मसीह आएगा और हम ट्विंकलिंग ऑफ एन आई में, आँख झपकते, प्रेरित पौलुस वहाँ पे ग्रीक वर्ड यूज़ करता है कुरिन्थियों की पत्री में, थिस्सलुनीकियों की पत्री में। प्रभु प्रेरित पौलुस कहता है तुरी फूकते ही, पलक झपकते। उसके लिए ग्रीक वर्ड है अटोमोस। और टोमोस का मतलब है नैनो सेकेंड। प्रेरित पौलुस को पवित्र आत्मा ने आज से 2000 साल पहले बता दिया था नैनो सेकेंड के विषय में। वैज्ञानिकों ने 70 साल पहले ढूंढा है। 70 भी नहीं, अभी रिसेंटली नैनो टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप पिछली 2-3 डेकेड में हुई है। हालेलुया। हमें जलाली देहें मिलेंगी। हर एक देह की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, डिवाइन रेजोनेंस है, डिवाइन रोशनी है। हम सब अभी प्रभु के लिए कैसे जीते हैं? क्या हम अपने आप की इनकारी करते हैं? डू वी डिनाई आवरसेल्व्स? क्या हम अपने आप को इनकार करते हैं, या हम दुनिया के जैसे संसार के लोग हैं ना, इस संसार में पॉलिटिशियन हैं, फिल्म स्टार हैं, इस संसार के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, वो अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं, अपने आप को बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टरों के ऊपर अपनी मशहूरियाँ करवाते हैं, अपनी पब्लिसिटियाँ करवाते हैं, वो अपना नाम चाहते हैं, उनके फैंस होते हैं। फैंस, मैं तो हैरान हूँ, पादरी भी लिखते हैं फैन फलाने पास्टर दा, फैन टमकाने रसूल दा। मुझे नहीं मालूम ये कौन सी बाइबल पढ़ते हैं ये पास्टर लोग, कौन सी बाइबल पढ़ रहे हैं भैया? मेरे को 30 साल हो गए इसे पढ़ते हुए, 30 साल। अभी तो हल्की सी, मतलब शायद हल्का सा पहले पन्ने का हल्का सा कुछ मुझे प्रकाश मिला है, लेकिन वचन में तो भाई और बहनों कहीं ऐसा नहीं लिखा। ये तो बेबीलोन का, ये बाबुल की नगरी का धर्म है। फैन फलाने अपोस्टल का, फ्लैन धमकाने अपोस्टल का, लव फलाना मिनिस्ट्री लव्ड। अरे भैया, लव जीसस। आपके प्रेम का एक ही पात्र है, आपका सारे का सारा प्यार यीशु मसीह के चरणों पे जाना चाहिए, और यीशु मसीह के प्यार में से आपने एक दूसरे से प्यार करना है। आपके पास प्यार का, आप प्यार का स्रोत नहीं है, प्यार का स्रोत यीशु मसीह है। वचन में लिखा है उसने पहले हमें प्यार किया, हमने थोड़ा उससे प्यार किया। हम तो प्रेम रहित थे, हम तो सूखा वृक्ष थे, श्रापित थे, अंधकार में ही नहीं थे। प्रेरित पौलुस लिखता तुम खुद अंधकार थे, तो प्रभु ने अपना प्यार हमारे अंदर डाला, उस प्यार से हम प्यार करते हैं। तो हमारे प्यार को हमने यीशु मसीह की ओर अस्क्राइब करना है, इंसानों को अपना वो मबूद बना के नहीं। तो प्रभु का वचन क्या बताता है? प्रभु का वचन बताता है अलग अलग देह, अलग अलग जलाल है। तो यीशु मसीह प्रकट हो जाता है, और यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह थोमा को कहता है मेरी पसली के अंदर हाथ डाल के देख, और मेरे हाथ और ये स्कार देख, और विश्वास कर। हालेलुया, विश्वास कर। हालेलुया। आपको मालूम वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है उन्होंने कांटों को गूंदा, और कांटों को गूंद के एक मुकुट बनाया। कांटों को गूंदा और कांटों को गूंद कर एक मुकुट बनाया। और उन्होंने यीशु मसीह को एक पर्पल ट्यूनिक पहना दिया। यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं, और उसके सर पे कांटों का ताज रखा, और एक काना जिसे हम सरकंडा बोलते हैं उसके हाथ में पकड़ा दिया, ताकि उसको ठट्ठों में उड़ाएं। भाई और बहनों, यीशु मसीह पे आंख लगाइए। आपके दिल में कभी अभिलाषा पैदा ही नहीं होगी अपने आप को ऊंचा करने की। जब आप उस यीशु को देखेंगे जिसके सर पे कांटों का ताज झूल रहा है, जो क्रूस पे अलफ नंगा लटका है,
कुछ भी नहीं है उसके शरीर पे। और आपको मालूम एक जवान बेटे की सबसे बड़ी जिल्लत क्या होती है? एक जवान बेटे को अगर उसकी माँ के आगे नंगा किया जाए। देखें शर्मसारी हमारे खुदावंद की। रोमी सिपाही यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज रखते हैं, क्यों? उसे शर्मसार करने के लिए, हम्बल हलीम करने के लिए, झुकाने के लिए, नीचे गिराने के लिए कांटों का ताज उसके सर पे रखते हैं। और मैं जूइश रिसोर्सेज पढ़ रहा था, जोसेफस का अकाउंट भी पढ़ रहा था कि वो कांटे जो यरूशलेम में होते थे जिसका वो ताज बनाया, उन कांटों की टिप के ऊपर ब्लड, कांटों की नोक के ऊपर जहर होता था, और वो जहर यीशु मसीह के दिमाग में चला गया, ब्रेन में चला गया, न्यूरॉन्स में चला गया, जलायल सेल्स में चला गया। ये जहर पता क्या? ये गंदे ख्यालों का, गंदे विचारों का, गंदी थॉट्स जो आप एंटरटेन करते हैं अपने ब्रेन में, उसका जहर यीशु मसीह ने अपने अंदर ले लिया। मैं एक वचन देना चाहता हूँ आपको, जल्दी से पढ़ें। मैं पूरा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने इस वचन को नहीं देखा होगा इस रोशनी में। जल्दी से निकालें इब्रानियों की पत्री, उसका 6 अध्याय। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय, उसका 8 वचन। इब्रानियों 6 की 8। इब्रानियों की पत्री, बहुत अद्भुत वचन है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। इब्रानियों 6 अध्याय, उसका 8 वचन। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय, उसका 8 वचन। हालेलुया। पढ़िए 6 का 8। इब्रानियों 6 का 8। यहाँ पे लिखा है, बट दैट विच बेयरeth थॉर्न्स एंड ब्रायर्स इज रिजेक्टेड एंड इज नाigh unto cursing, whose end is to be burned। हालेलुया। अगर इससे पिछली आयत पढ़ेंगे 7, तो वहाँ लिखा है, for the earth which drinketh in the rain that cometh off upon it bringeth forth herbs meet for them by whom it is dressed, receiveth blessing from God। बहुत अद्भुत 2 वचन लिखे हैं इब्रानियों की पत्री में, ये 6 का 7 8। 6 के 7 में कहता है, जेड़ी पौं उस वरखा नू जो उस उत्ते बार बार पैंदी है। पृथ्वी की बात की जा रही है, ज़मीन की। वो ज़मीन जिसके ऊपर बार बार स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से बारिश आती है, ਅਤੇ जिन्हां ਲਈ वाही जाती है, उन्हां दे जोग सागपत उगांदी है। सागपत यहाँ पे ओरिजिनल वर्ड लिखा है हर्ब्स, और फ्रूट पैदा करती है पृथ्वी जो भूमि के ऊपर परिश्रम करते हैं, परमेश्वर बारिश भेजता है, और भूमि जो वो बीज डालते हैं फल का, फूलों का और हर्ब्स का, वो उनके लिए पैदा करती है। रिसीवेथ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। हालेलुया। वो वचन में लिखा है, ओनू परमेश्वर तो वर मिलता है, वो परमेश्वर की ब्लेसिंग है। लेकिन क्या लिखता आगे, पर जे वो कंडियाले ते भखड़े उत्पत्त करे तां अपरवान हुंदी है, अते शरापी जान दे नेड़े है, जिहदा अंत भस्म कीता जाना है। हालेलुया। ये थॉर्न्स और थिसल्स जो हैं, ये झाड़ियाँ जो हैं, जो कांटे हैं, ऊंट कटारे हैं। हालेलुया। मैं एक जूइश पुस्तक पढ़ रहा था बहुत साल पहले। उस पुस्तक का लिखने वाला कह रहा था कि जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, तो परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बाग से बाहर निकाल दिया। उनको ढांपा, उनके नंगेपन को मेमने की खलड़ी से ढांप दिया और उनको अदन के बाग से बाहर निकाला। जैसे आदम अदन के बाग से बाहर निकला, पृथ्वी पे उसने पांव धरा, एकदम उसने नज़र उठा के देखा कि कांटे, ऊंट कटारे पैदा होने शुरू हो गए पृथ्वी पे पहले कांटे नहीं थे, ऊंट कटारे नहीं थे। Thorns and thistles were not part of the original creation of God. Thorns, thistle, bushes, God never designed in His eternal mind. They are a consequence of human fall. So here the writer of Hebrews says, what does the writer of Hebrews says? He says, but that which beareth thorns and thistles is rejected. The one who bears thorns and thistles is rejected and is nigh unto cursing.
whose end is to be burned. This is talking about the crown of thorns that Jesus had on his brow. यीशु मसीह के सर के ऊपर जो कांटों का ताज है भाई और बहनों, हालेलुया। ये कांटों का ताज लानत है जो मेरी थी। कांटों का ताज वो लानत है जो आपकी और मेरी थी। ये कांटों का ताज वो रिजेक्शन और बिट्रेयल है जो आपका और मेरा था। और ये कांटों का ताज वो अल्टीमेट बर्निंग है जिसमें आपको और मुझे जाना था, जो मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह पृथ्वी पे आया, हालेलुया, यीशु मसीह ने ये वाला जीवन भोगा है जो मैंने आपको दिखाया है। अब यीशु मसीह फिर आएगा और वो राजा बन के आएगा। भाई और बहनों, जब यीशु मसीह आएगा तो उसके पवित्र जन, धर्मी लोग, जिन्होंने क्या किया है, वचन में लिखा है, जो जय पाए, जो विजयी हुए, जिन्होंने अपने शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर जय पाई, अपनी देह को क्रूस पे चढ़ाया, वो लोग जिन्होंने शैतान के ऊपर विजय पाई, अधोलोक पे विजय पाई, वो लोग जिन्होंने संसार की अभिलाषाओं पे विजय पाई। फिर प्रभु कहता है जो फल लाए, वो लोग जो बहुत सा आत्मिक फल लेकर आए प्रभु के लिए, हालेलुया। और तीसरी बात प्रभु कहता है जो वफादार रहे, मृत्यु तक जो प्रभु के लिए वफादार रहे। ये 3 कैटेगरी के लोग, 3 बातें होंगी उन लोगों में जो मसीह के संग राज करेंगे। आपको मसीह के दुखों में सहभागी होना है, हालेलुया। मुझे अभी कोई तमन्ना नहीं है बिशप, आर्च बिशप, रेवरेंड डॉक्टर, हिज होलीनेस बनने की। सच बता रहा हूं आपको, मैं बनना चाहता हूं उसका पुत्र, हालेलुया। और आपको मालूम, आप कहोगे आप पुत्र तो बन चुके हो। वचन में लिखा है यूहन्ना 1:14 में, जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया। लेकिन लोग रोमियो 8:14 नहीं पढ़ते हैं। रोमियो 8:14 पढ़िए, वहाँ पे लिखा जितने पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। ओरिजिनल ग्रीक में लिखा है जितने हर समय पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में राज कर रहा है और आप पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हो, हालेलुया। मैं और ये संदेश आपको थोड़ा थोड़ा दूंगा, पर मैं चाहता हूँ भी हम प्रार्थना करें, हालेलुया। सम पीपल जॉइंड अस लेटर। आइए हम प्रार्थना करें। लॉर्ड, आई प्रे फॉर अमनदीप कुमार। लॉर्ड, may these things sink deeper into his heart and soul. Lord, I pray for Samina Ashraf. May this mind be in her that was in Christ Jesus. The mind, the attitude, and the entire frame of humility and brokenness, Father. I speak that blessing over her life in the mighty name of Jesus. Over Malkiyat Gil, Lord, may the spirit of humility, the spirit of brokenness flood his heart, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, I pray in the mighty name of Jesus over all these friends who are online. Bobby Art, Lord, I cover him under the blood. खुदावन तेरे लहू की कुदरत को, तेरे लहू के मसा को मैं इन सब के ऊपर खोलता हूँ। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो। लॉर्ड जीसस वी ब्लेस यू, लॉर्ड जीसस वी लव यू। प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, 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 प्रभु तेरे नाम की, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, यीशु मसीह से कहें प्रभु मुझे घटना सिखाइए। आपको मालूम हमें घटना क्यों है? क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत बड़े हैं घमंड में, इसलिए हमें घटना है।
परमेश्वर का दास कहता है, लेट मी डिक्रीज एंड लेट हिम इंक्रीज। मैं घटूं और मसीह मुझ में बढ़े। हालेलुया। मेरा ये जो सेल्फ है ना, सेल्फ, ये मरना चाहिए मुकम्मल तौर पे, ताकि मसीह की खूबसूरती हम में प्रकट हो। हालेलुया। यीशु मसीह हम में प्रकट हो, यीशु मसीह का जीवन प्रकट हो, यीशु मसीह की खुशबू प्रकट हो, यीशु मसीह का जलाल हमारे जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह, मेरे संग कहें, बोले प्रभु यीशु मसीह, मैं घटूं और तू बढ़े मुझ में। यीशु मसीह मुझे दीनता से भर। यीशु मसीह मुझे पवित्रता ही का जीवन दे। यीशु मसीह मुझे सादगी से भरा जीवन दे। प्रभु दिखावटी बनावटी जीवन नहीं। प्रभु मेरे जीवन का एक एक मोटिव, एक एक मकसद मेरे जीवन का तेरी महिमा के लिए हो। तू मेरे हृदय और गुर्दों को जांचता है। प्रभु मेरे हृदय और गुर्दों को जांच। अगर मेरे अंदर कोई ऐसी प्रभु बुरी रविश है, या खुदावंद मेरे अंदर कोई ऐसी छिपी हुई अभिलाषा है, अंदर कहीं से छिपी हुई ख्वाहिश है कि मैं मशहूर हो जाऊं, लोग मेरी वाह वाह करें, लोग मेरे को देखें, लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरा बड़ा नाम हो, प्रभु ऐसी अगर गंदी कामनाएं हैं तो उन्हें निकालिए प्रभु जी। हालेलुया। यीशु मसीह, जो तेरा